So good morning to all of you. This is your computer science first lecture, and in this lecture we will going to discuss what is programming, what is Python, how to code in Python, how we need a programming in a real life scenario, and lots of you will be seen in this syllabus. Okay, so your syllabus is just simple. There are three. The syllabus is divided in three parts, which is first you have to listen Python. First you have to learn the Python concept. What is a Python? And how to code the programming in Python, the keywords, identifiers, special symbols, and conditional operators, and so on. You are going to learn in this 11th class. Then after, the second one is database. Both are important. Database stands for how to store data in computer. Okay, so if we want to store the data in permanent storage, or we can say this hard disks, so we are going to use this database concept. In this we are going to learn SQL. This is a language SQL, and by using this language you can easily store your data in a tabular form in the computer, in the hard disks, okay, or in the pen drive, or and so on. And then next is networking. What is networking? Networking is to connect two computers. It may be two workstations, it may be two servers. So the connectivity is known as networking. In this you have already read in your earlier classes, like the cables, like twisted pair cables, Ethernet cables, and so on. And you already read about Wi-Fi and Bluetooth technology. And we will actually read these topics in a large way. Okay, so that's your whole syllabus for 11th and 12th also, है ना? The syllabus for 11th is just same as syllabus for 12th, और 12th में थोड़ा सा syllabus क्या है, extend कर दिया गया है, थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है. बाकी अगर जो बच्चे 11th में Python और database को अच्छी पकड़ रखते हैं, उनके लिए 12th जो होगी वो बहुत ही easy हो जाएगी. It means the efforts are to be taken at the level of 11th, and the results or the final fruit will be given on in the 12th class. Okay, so the programming nature and the coding methods, it is new for you. आपने कभी ऐसी coding नहीं की होगी. You just familiar with HTML coding. आप HTML से लेकर थोड़ा familiar होंगे. जो HTML में हमने जो प्रीवियस 10th के स्टूडेंट हैं उनको मैंने HTML की जो कोडिंग है वो मैंने जरूर बताई है, तो वहां से थोड़ा सा आप फेमिलियर जरूर होंगे. लेकिन अगर ये जो कोडिंग कर रहे हैं थोड़ा सा बिट डिफरेंट है. हमारे जो HTML में कोडिंग कर रहे हैं वो अलग है. HTML भी एक कोडिंग है, लेकिन वहां से और ये पाइथन की कोडिंग थोड़ा सा क्या है, डिफरेंट है नेचर. तो इसको थोड़ा अडॉप्ट करने में आपको थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ये आपके लिए एकदम न्यू होंगे. इस टाइप की कोडिंग आपने कभी की नहीं होगी. और मे बी सम ऑफ यू हैव नॉलेज ऑफ कोडिंग. आई डोंट, मैं इसे इनकार नहीं करता, लेकिन अधिकतर बच्चों के लिए ये कोडिंग क्या है, एकदम न्यू कंसेप्ट है. सो अब जो आपको मैंने बता दिया कि कंसेप्ट में आपको पाइथन, डेटाबेस और नेटवर्किंग तीन टॉपिक्स आपको मिलने हैं. अब इन कंसेप्ट के स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट इज व्हाई वी डू प्रोग्रामिंग एंड व्हाट इज प्रोग्रामिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड प्रोग्रामिंग. ये प्रोग्रामिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है, एंड व्हाई वी आर डूइंग प्रोग्रामिंग. लेट्स सपोज right now in this COVID-19 pandemic, we are facing a situation in which students and teacher can't connect to each other because there is a difference, there is a gap between these two. Why? Because all the students are at home and teachers are at home, and they can't connect to the students. So we have find a solution like online teaching. Okay, so what is the online teaching? Online teaching is that a teacher teaches here, like me, I am teaching here, okay, and you are at your home. Okay, you are at your home, every student are at home, and they can easily learn the topics, the data, the concepts at home without going to school. Okay, so the interface between these two, like we are using Zoom here. So Zoom is what? Zoom is a software, and this software is made by coding.
there are some instructions which is given by a programmer to the machine, and the machine will follow the instruction one by one, one by one, one by one, and finally we will have a good results. Let's suppose I want to add something. Let's suppose you have a calculator at your home. Okay, so if you want to add two numbers, you just press like 2, then plus, then 3, and then equals. So what is the process behind this plus and equals? There are some codes behind it. When you press plus, it will indicate the processor that some values are to be calculated, like to be add, to be multiply, or so on. And the equals to refers to the processor that you have a final output, and please give me the output, I will display it on the screen. That's how the processes go on. So every programming has a unique goal. Like I want to print something, I want to search something, I want to do anything on the net or offline or online. So I want to do some task, some specific task. And for this specific task, I have to follow, or I have to follow the nature of the programming. We can do programming at the machine level also, as earlier did in 1950s. Okay, that time the programmers were coding at the machine level, but it is not easy for us to code to code at the program at the machine level, because computer system or any system which can compute anything is using pulse to calculate data. Okay, there is no data inside the machine, there is only pulse. Pulse refers to electricity, and the electricity has two properties, which is either it is on or it is off. And this on off method is used by the processor or by the circuit to produce a final result. Okay, that's how the process is going on. So what if I want to tell something to the machine, I have to code in the machine level. It means I have to send the instruction in pulse, but it is not easy for a normal human being. किसी भी human being के लिए क्या possible नहीं है. So what they did, they have created a first language, assembly language. Assembly language which has some capability to write English words, and then these English words has specific meanings, and these specific meanings is already understandable by the machine. Okay, let's suppose I have a word. Let's suppose I am taking a simple example. Okay, it is not a real life example. I'll take a simple example. Let's suppose I write print here, and I am a programmer, and I create a language. मैंने एक language बनाई है. उस language में मैंने ये रखा कि ये it is a machine. It is a machine. It is a machine, and I want to, let's suppose it is a machine, and I want that if the programmer write print, then it will print it on the screen. Okay, मैं ये चाह रहा हूं कि एक मशीन है हमारे पास, कंप्यूटर सिस्टम एक मशीन, कोई भी मशीन हो सकती है, और उस मशीन के अंदर हम एक वर्ड है, ये वर्ड मैंने बनाया है कि हाँ प्रिंट वर्ड का जब भी कोई यूज करेगा तो उस प्रिंट के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो एज इट इज स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा. ये मैं चाहता हूं. ओके, तो इट मीन्स दिस इज द लैंग्वेज. ये क्या कहलाएगी? लैंग्वेज. दिस इज कॉल्ड लैंग्वेज, और यही लैंग्वेज कहलाएगी. इसी लैंग्वेज से क्या की जाती है? कोडिंग डिकोडिंग की जाती है. एक और अच्छे से एग्जांपल से हम इसको समझते हैं तो और भी क्लियर हो जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय अ लैंग्वेज. let's suppose there is a situation like there is a line here. Let's suppose एक एग्जाम्पल लेते हैं. इट इज अ लाइन हियर. यहाँ पर एक लाइन है और
हम बात कर रहे हैं कि टू पीपल है, यहां पर दो पीपल है, P1 एंड P2, एंड P1 P2 सी द लायन, P2 ने लायन को देखा। अब लायन को देखा, P2 नो लैंग्वेज 1, P1 नो लैंग्वेज 2। सो क्या P1 P2 से कम्युनिकेट कर सकता है? नो, बिकॉज दे बोथ हैव डिफरेंट लैंग्वेज। लाइक इफ आई speaking here Hindi or English, and some of you all only know the French language, then she cannot understand what I'm saying here, what I want to say. वो मेरी बात नहीं समझ पाएगा। Okay, so right now this line is a task. It is a task. ये task हमें perform करना है। This is human. ये कौन है? Human है। and this is machine. So ये प्रॉब्लम हमारे पास है कि हमारे पास एक टास्क है और एक ह्यूमन है, उसको अलग लैंग्वेज आती है, और एक मशीन है, उसको अलग लैंग्वेज आती है। मशीन को अलग लैंग्वेज आती है, ह्यूमन को अलग लैंग्वेज आती है, और टास्क करना परफॉर्म। सो हाउ टू डू इट? वी वांट अ इंटरमीडिएटर। हमें क्या चाहिएगा? एक इंटरमीडिएटर चाहिएगा। जो इंटरमीडिएटर क्या करे, जिसे हम ट्रांसलेटर कहते हैं। जैसे कोई जैसे इंडियन जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव है वो फॉरेन जाते हैं, तो वो ऐसी कंट्रीज में, चाइना चले गए, तो चाइना चले गए तो उनको चाइनीज नहीं आती, तो उनको बीच में क्या रखते हैं? वो ट्रांसलेटर रखते हैं। वो क्या करता है? उससे दोनों लैंग्वेजेस आती हैं अच्छी तरह से। तो राइट नाउ वी वांट अ ट्रांसलेटर इन बिटवीन मशीन एंड ह्यूमन, that human can write in her own language, machine can understand in her own language, and the work will be done by machine very easily. So this intermediator is known as translator. It is known as translator. There are three types of translator, which is, first is assembler. Assembler stands for that software that can translate assembly language into machine language. अगर assembly language को machine language में convert करना है तो किसकी जरूरत होगी? हमें assembler की जरूरत होगी। ये जो स्टार्टिंग 1950s के आसपास की बात है, जब assembly language आई थी, तो assembly language को translate करने के लिए assembler का यूज किया गया था। ट्रांसलेट किस में करना है? We have to translate it in machine language, okay, at the level of machine. Okay, we will read what is binary codes, the number system. The whole topic is known as number system. We will read the whole topic number system in our future lecture, but right now machine language होती है जो 0 और 1 की फॉर्म में होती है। ये आप देख लें, 0 और 1 की फॉर्म में मशीन लैंग्वेज होती है, और ये मशीन लैंग्वेज होती है, ये ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ही टिपिकल हो जाती है उसको कोड करना। तो उसके लिए क्या किया जाए? हम एक इंटरमीडिएट रखते हैं। आई राइट इंग्लिश लेटर्स एंड द ट्रांसलेटर विल ट्रांसलेट दीज इंग्लिश लेटर्स इनटू मशीन लैंग्वेज। ओके, सो मेरा टास्क हो गया। Let's suppose I want to print something, suppose I want to store something, let's suppose I want to create something. मुझे किसको बोलना पड़ेगा? I only have to tell the translator. And what the translator do? Translator translate this in machine language, and the machine language is easily understandable by the machine, and the machine will perform the following actions. Okay, right now let's suppose हम Zoom यूज कर रहे हैं। अब Zoom यूज कर रहे हैं तो Zoom, what is the Zoom? Zoom is an application software. It is an application software. अब ये application software रन हो रहा है, तो ये application software अपने सारे कोड्स किसको दे रहा है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम को दे रहा है। जैसे Windows 7, किसी के पास Android होगा, किसी के पास Windows 7 होगा, Linux है, Unix है ना, Ubuntu है, Fedora है, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली है क्या? These are the translators. यही तो ट्रांसलेटर हैं। ये ट्रांसलेट किसको करते हैं? आपके कोड्स को। जैसे ये जूम चल रहा है तो इसके कोड को किससे ट्रांसलेट कर रहे हैं? मशीन लेवल से ट्रांसलेट कर रहे हैं, और मशीन इजीली अंडरस्टैंड कर रही है। दैट्स हाउ यू ऑल आर सीइंग मी राइट नाउ एंड लिसन टू मी, लिसन माय वॉइस राइट नाउ, बिकॉज ऑफ दीज ट्रांसलेटर। ये ट्रांसलेटर क्या कर रहे हैं?
जो let's suppose this is a video here and the camera is capturing the video, it means it is a hardware, it means it is a machine. This machine encode the images into 0101 form, which is a machine code, and this will go to the bus. In the बस होती है, बस के थ्रू कहाँ जाते हैं वो मशीन में, मशीन से क्या होता है फिर वहां से वो सेंड होते हैं किसको, प्रोसेसर को, और प्रोसेसर उनको कंप्यूट करता है. एंड देन आफ्टर दिस इमेज इज सेंड टू बाय यूजिंग द लैन वायर टू द इंटरनेट, एंड इंटरनेट पे जूम के जो मेन हेडक्वार्टर है वहां से ये क्या कहते ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है. कहां पर, जितने भी यूजर्स हैं जो सिलेक्टेड कोड से जुड़े हुए हैं उन सभी यूजर को ये सारा का सारा डेटा क्या किया जा रहा है, सेंड किया जा रहा है. एंड एट द एंड जब आपके सिस्टम एंड्रॉइड सिस्टम पर वो डेटा आया तब तक वो किस में है, मशीन कोड में ही है. एंड देन आफ्टर दिस जूम विल कन्वर्ट दिस this operating system will convert this 0101 into मशीन रीडेबल कोड, फिर वो भी चेंज होते हैं. दिस इज अ प्रोसेस. नेटवर्किंग में हम देखेंगे टीसीपी आईपी मॉडल, उसमें हम देखेंगे कि कैसे ये डेटा चेंज होते हैं. पर राइट नाउ डेटा क्या हो रहा है, हमारा सीधा एंड्रॉइड मोबाइल के पास आया और जूम ने क्या किया, उसको वापस किसमें कन्वर्ट किया, यूजर लेवल एक्सपीरियंस में. और यहाँ पर आपको मेरी इमेज अभी राइट नाउ विद ऑडियो दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है. So that's how the whole process is going on. So we want a translator to translate our code into the machine language. It is essential, it is compulsory, and it is our need, because we can't code in binary language. We will read the concept of binary language and then how you can understand that how it is too typical to code any data or code any program in a binary language. Okay. This concept कोडिंग टू बाइनरी लैंग्वेज इज नोन एज माइक्रोप्रोसेसर. एक टॉपिक आता है, पूरा चैप्टर है, आपके नहीं है ये सिलेबस में, लेकिन माइक्रोप्रोसेसर के अंदर ही ये सब आता है, जहां पर हमें मशीन लेवल पर जाकर ये कंपाइलर डिजाइन, दो टॉपिक हैं, कंपाइलर डिजाइन एंड माइक्रोप्रोसेसर, जहां पर जाकर हमें सिस्टम की कोडिंग 0101 में की जाती है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है. अगर आप फ्यूचर में जब जाएंगे आगे, अगर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट चूज करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा. ठीक है. तो देयर आर थ्री टाइप ऑफ ट्रांसलेटर. फर्स्ट इज असेंबलर, सेकंड वन इज कंपाइलर, एंड थर्ड इज सो इंपॉर्टेंट इंटरप्रेटर, बिकॉज द पाइथन फॉलोज इंटरप्रेटर. पाइथन किसको फॉलो करता है, इंटरप्रेटर को फॉलो करता है. ओके. सो व्हाट इज अ इंटरप्रेटर एंड व्हाट इज अ कंपाइलर, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि कंपाइलर क्या होता है. कंपाइलर एक्चुअली क्या होता है, आपने कोड पूरा लिख दिया एंड इट विल रीड द एंटायर कोड एंड देन आफ्टर इट विल गिव्स यू द एरर्स, द प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम होगी उसके अंदर जो डेटा आपने लिखा है उसे समझ में नहीं आया है. लेट्स सपोज यू हैव डन सम syntax errors, let's suppose you have written some you have made some spelling errors, you have didn't write the syntax very well. तो वो क्या करेगा, आपको पूरे डेटा को एक साथ, पूरे प्रोग्राम को पूरा पढ़ के और आपको एरर जनरेट कर देगा. यू हैव 20 एरर, 30 एरर, 50 एरर. ओके. तो जो सी लैंग्वेज होती है, सी लैंग्वेज हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, ये क्या किसको फॉलो करती है, ये करती है कंपाइलर को फॉलो करती है. किसको फॉलो करती है, कंपाइलर को. बट द पाइथन फॉलोज इंटरप्रेटर. व्हाट इज इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर डिकोड इट बाय लाइन बाय लाइन. वेरी गुड, लाइन बाय लाइन डिकोड करते हैं. लाइन बाय लाइन मींस द फर्स्ट लाइन रीड किया, आउटपुट दिया, सेकंड लाइन रीड किया, आउटपुट दिया, थर्ड लाइन रीड किया, आउटपुट दिया. ओके. तो ये क्या करता है, लाइन बाय लाइन डिकोड करते हैं. फर्स्ट लाइन रीड किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेकंड लाइन रीड किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थर्ड लाइन रीड किया, प्रॉब्लम है, वो वहीं स्टॉप हो जाएगा, वो आगे की लाइंस को रीड नहीं करेगा. तो इससे क्या फैसिलिटी हुई, पाइथन में इसे क्यों लिया गया. कंपाइलर कितना अच्छा है, पूरा पूरा प्रोग्राम कोड कर दिया. और इट मींस जहां हमारी नीड है कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम के लिए, बड़े प्रोग्राम्स को रन कराना होता है, वहां हम किसका यूज करते हैं, कंपाइलर का यूज करते हैं. लेकिन जहां छोटे छोटे कोड होते हैं, छोटे छोटे टास्क होते हैं, उनको परफॉर्म कराना है तो इंटरप्रेटर का यूज करें. बिकॉज इंटरप्रेटर इज वेरी फास्ट इन द स्मॉल प्रोग्राम. छोटे छोटे प्रोग्राम में इंटरप्रेटर क्या होता है, बहुत फास्ट वर्किंग करता है, जबकि कंपाइलर जो होता है वो बड़े प्रोग्राम के ऊपर क्या करता है, फास्ट वर्किंग करता है. ठीक है ना. और पाइथन छोटे प्रोग्रामों के लिए ही बनाया गया है. अधिकतर इसमें जो प्रोग्राम बनते हैं वो छोटे प्रोग्राम ही बनते हैं. ठीक है ना. तो दैट्स हाउ दिस होल प्रोसेस इज गोन ऑन. आई हैव एक्सप्लेन यू what is a translator, why we are using programming for a real life example. yes, देखो एक असेंबलर, तीन टाइप के ट्रांसलेटर होते हैं. असेंबलर एक अलग टॉपिक है, बिकॉज असेंबलर इज ओनली यूज्ड टू डिकोड असेंबली लैंग्वेज.
इट इज पर्टिकुलर फॉर अ लैंग्वेज, एक असेंबली लैंग्वेज के लिए असेंबलर यूज किया जाता है। बट कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर ये बहुत सी लैंग्वेजों द्वारा अडॉप्ट किया गया है। जैसे हम बात करें जावा की, एक जावा लैंग्वेज है, जावा इज अ लैंग्वेज। अब ये कंपाइलर भी यूज करता है और इंटरप्रेटर भी यूज करता है, ये दोनों यूज करती है। इट मींस कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, यू कैन से दैट इट इज अ कंसेप्ट, दो कंसेप्ट है अलग अलग जो एक दूसरे से डिफर करते हैं। लेकिन असेंबलर की बात करो तो असेंबलर इट इज फॉर अ स्पेसिफिक लैंग्वेज, वो सिर्फ असेंबली लैंग्वेज के ही है, वो सिर्फ असेंबली जो स्टार्टिंग लैंग्वेज थी, जहां से स्टार्टिंग हुई है ये कि इंग्लिश वर्ड्स को यूज करना है कोडिंग के लिए। पहले कोडिंग के लिए इंग्लिश वर्ड्स को यूज नहीं किया जाता। जैसे आपने देखा होगा चार्ल्स बेबेज का एनालिटिकल इंजन देखा होगा, अगर नेट पे सर्च करना आप एनालिटिकल इंजन आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेगा। उस इंजन में देखना आप कि कुछ सेटिंग्स होती है, उन सेटिंग्स का परफॉर्म करते हैं तो ऑटोमेटिक हमको आंसर प्रिंट आउट के रूप में मिल जाता है। इट मींस देयर इज नो प्रोग्रामिंग देयर, वहां कोई प्रोग्रामिंग नहीं है ना। वी कांट राइट देयर सम वर्ड्स और हम ऐसा कुछ लिख नहीं सकते उसके अंदर। वो मशीन जैसी मशीन है ना, मशीन में 3-4 रीसेट सेट किए तो 4th ऑटोमेटिक रीसेट हो गया। जैकार्ड लूम है, बहुत सी चीजें हैं जो उसमें स्टार्टिंग फेजेस की है, वहां पर ये सिस्टम का यूज नहीं किया गया। बाद में जब उनको प्रॉब्लम्स आई, जब कोडिंग कर रहे थे, पंच कार्ड यूज किए गए। एक पंच कार्ड जो अपने पेज होल्डर, पेज को जो पेज में फाइल बनाने के लिए वो आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, फाइल बनाने के लिए आता है, उसमें क्या होता है पंच होल होता है, उसमें क्या करता है वो होल कर देता है। तो वैसा ही एक पंच होल मशीन भी थी, वहां पर भी क्या था कि 3-4 इनपुट्स रख दिए और वो कार्ड जैसा इतना बड़ा कार्ड होता है, इंसर्ट किया एंड देन प्रेस किया तो वो रिजल्ट के रूप में एक फाइनल क्या हो गया, एक होल हो गया, तो हम उसको रीड कर सकते थे। दैट्स व्हाई दीज आर ओल्ड टेक्नोलॉजीज, but after that they have faced that if they use human words or English level letters, it is easy to code any problem। तो उन्होंने क्या किया, कोई भी स्पेसिफिक टास्क है उसका 0101 कोड तैयार किया कि इस पूरे काम का 0101 कोड ये है, उसका एक नाम दिया और वो नाम क्या हमने प्रोग्रामिंग में यूज करना स्टार्ट कर दिया। तो हमारे लिए कितना इजी हो गया उन प्रोग्राम को करना। लेट्स सपोज राइट नाउ अगर ये ऑनलाइन प्रोग्रामिंग, ऑनलाइन जो टीचिंग हो रही है, इसका अगर ऐसा होता कि सभी बच्चों को घर में बैठ के प्रोग्राम बनाना इसके लिए और प्रोग्राम बनाओ और फिर अपने यहाँ पर रोड ये ऑनलाइन टीचिंग लो, तो ये तो पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स के लिए। तो आपको क्या किया, एक रेडीमेड सॉफ्टवेयर बना के दिया, एक रेडीमेड सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया और यूज किया। ओके, तो व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर भी क्या होता है, कोड, ग्रुप ऑफ कोडिंग, बहुत सारे कोड्स का क्या होता है, ग्रुप होता है। व्हाट आर दीज कोड्स? ये सारे कोड क्या होते हैं, वही अल्फाबेट्स है जिन अल्फाबेट की 0101 कोडिंग ऑलरेडी की हुई है। ओके, सो अब आप जो करेंगे, आपको 0101 नहीं करना, आपको उन इंग्लिश वर्ड्स का यूज करना है अपनी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। और उसके लिए आपको उसका नेचर, उसका सिंटैक्स, लिखने का तरीका, कहां लिखा जाता है, इंडेंटेशन होगा, ये बहुत सी स्पेसिफिक टास्क है। बिकॉज यू हैव ऑलरेडी नो दैट जहां कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी चीज जो भी होगी, जो भी टास्क परफॉर्म होगा, वो यूजर के द्वारा ही किया जाएगा। लेट्स सपोज राइट नाउ दिस क्लास इज गोइंग ऑन एंड इफ यू वांट टू लीव यू मस्ट हैव टू प्रेस दिस एंड बटन। अगर आप एंड नहीं करोगे तो वो एंड ही नहीं होगा। इट मींस सारे प्रोसेसेस किसके थ्रू की जाते हैं, प्रोग्रामर या यूजर के थ्रू। सिस्टम तो सिर्फ क्या करता है, उनको फॉलो करता है। क्या करता है, फॉलो करता है। लेट्स सपोज किसी बच्चे ने ज्वाइन पे क्लिक कर दिया और शी विल, तो उसने नाम नहीं लिखा है, तो नाम नहीं लिखोगे तो वो एंट्री नहीं करेगा और आप आगे प्रोसीड ही नहीं कर पाओगे। तो अपने तरफ से तो नाम लिखने से रहा वो, ठीक है ना। तो सिस्टम क्या करता है, सिस्टम को जो इंस्ट्रक्शन मिलते हैं वो उसी को फॉलो करता है। तो टुडे वी हैव डिस्कस व्हाट इज अ ट्रांसलेटर and what is the programming. We have also taught like what is binary language, है ना। binary language के बारे में पढ़ेंगे हम आगे जाके। तो this is all. Anyone have any questions, so she can ask me. अगर अब भी कोई questions हैं प्रोग्रामिंग के बारे में तो हम उस पे बात करेंगे। ओके